Good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. Okay, so as we discussed in previous classes about LibreOffice Calc edit menu, and this is our next session for the LibreOffice view menu. Okay, so now I am going to Yes, see what can we do with the menu option that is view. Okay, so just as you can see here, there are several things to know about view menu. That is, what can we do with the view menu. That is how the page is appearing, how the spreadsheet is appearing, about that. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पेज अपीयर हो रहा है, पेज अपीयरेंस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज दैट नॉर्मल व्यू. as you your screen is going to as your LibreOffice Calc on, तो जो आपका व्यू आता है दैट इज नॉर्मल व्यू. ओके, this one is normal view, and the second one is page break view. What is page break view? This one is that page break view. Okay, so now you can see. So are you getting the difference between normal view and page break view? Are you getting the difference? yes, sir. Yes, sir. Okay, so again going to see the next option, that is user interface. Interface, that is standard toolbar, single toolbar, side toolbar, tabbed, compact, group grouped bar compact, and so on. So going to see about the, this is called standard toolbar. This one is your standard toolbar. Everything is appearing on the screen. You may say it by the help of view option. So first, at first I am going to take a screenshot and going to share in your group, so that it will be fruitful for you. Now this one is that, and now, so okay, now going to see, um, I also would like to share, I would like to visit the book of okay, this one, ninth. Okay, this one is that, and books. Now class ninth, I am going to see the LibreOffice Calc. So we may follow the syllabus as per our. Okay, this one is this one. Okay, okay, now LibreOffice Calc, this is LibreOffice Calc. Okay, and here is a file, edit, view, and every option, toolbar, name box, and worksheet, rows, column. Okay, uh, for a few minutes I am going to discuss the things which are appearing in our syllabus and in our textbook. That is, in LibreOffice Calc we have studied about all the things like as a toolbars and a screen, status bar, zoom option, and many more things. Now this is a title bar, menu bar, and file, edit. As you can see, in file menu contains commands applied to entire document. Open, uh, wait a second. Okay, so in file menu, that is okay, in file menu contains command applied to entire document: open, save, wizard, export as PDF, print, digital signature, and so on. In edit menu we have completed contains editing command like as undo, cut, copy, paste, select, find, and replace, and so on. And now the term is about to view menu, that contains commands for modifying the user interface, toolbar, column and row, headers, full screen, zoom, and so on. So I'm going to see about the various options available in view item. Okay, and what will be the next, that is toolbar, name box, input. Okay, so now there is a point about, there is something about, that is user interface. If your standard toolbar is by default, this is on standard toolbar, single toolbar. Now you may see here the difference between that.
आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो टूल बार थे वो यहाँ पर सिंगल टूल बार हो गए, है ना? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? Yes, sir. So Yes, sir. have you got the difference between this toolbar, user interface, single toolbar or standard toolbar? And now going Yes, to sir. click on sidebar. What will be the effect of sidebar? Okay, now this is the thing that our some toolbars appearing in sidebar, right? You may see here. And now going to take a screenshot and going to share it on your group so that you may have remember about that. Okay, this one is side 2. Okay, now the next thing is that now going to you just see the thing that I'm going to see each and everything one by one by checking it, by pressing it. So as we came in standard user interface, that is not tabbed. What is tabbed? If you don't know what is the meaning of that and what will be the effect of that, प्लीज़ चेक वन बाय वन. ओके, तो जैसा मैंने अभी किया कि पहले स्टैंडर्ड टूल बार था हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था, ठीक है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको कहीं भी ऐसा डर लग रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो जाएगी, मेरे से कुछ गलत सेटिंग हो जाएगी, ऐसा डर होता है ना आप लोगों को Yes, sir. कि मैं अगर कुछ कर दूं फिर गलत हो जाए और ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, देन नथिंग टू वरी, डोंट वरी फॉर दैट. जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट पहले जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा कहाँ था, स्टैंडर्ड टूल बार पे था. इज दैट ओके? सो रिमेंबर वन थिंग, Yes. दैट इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू. जब भी उसको चेक करने जाएंगे तो हम ये याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था. जस्ट डू एवरीथिंग एंड कम बैक ऑन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दैट विल बी ओके. ठीक है, कहीं कुछ नहीं होना. और जो भी होता है यहाँ पे क्या होगा, कुछ मेन्यू आइटम्स अपीयर हो जाएंगे, कुछ डिसअपीयर हो जाएंगे. देयर इज़ नो ऑप्शन टू डिलीट एनी मेन्यू आइटम. आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि डेटा वाला जो मेन्यू है उसको डिलीट कर देंगे. इज़ दैट पॉसिबल टू यू? इज़ दैट पॉसिबल फॉर यू? ऐसा नहीं कर सकते ना, हम इनको डिलीट नहीं कर सकते ना. क्यों? कर सकते हैं क्या? दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. ये डिलीट कर ही नहीं सकते हम. सो हाँ, अपीयर डिसअपीयर जो भी होता है इसको हम कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपका यूज़र इंटरफेस में मैंने यहाँ तक साइड बार देख लिया था. अब टैब्ड में देखते हैं क्या होता है. सो नाउ यू विल सी द इफेक्ट ऑफ टैब्ड. नाउ ये टैब आपको याद है, ये टैब आपको याद है कहाँ से आया? हैव यू रिमेंबर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? हैव यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. वहाँ पे ये टैब बन के आते थे, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, लेआउट. याद है आपको? Yes, sir. तो अब यहाँ पे सब टैब में आने लगे. पहले क्या था, यहाँ पे टैब में नहीं आ रहा था. पहले क्या आता था, एक लिस्ट बन के आती थी. अब ये टैब मेन्यू में आ गया. नहीं, दिस इज़ रियली गुड थिंग ना, कि आपको जो कंफर्ट लगे वैसा आप कर सकते हैं. नहीं, सो इज दैट ओके? Yes, sir. सो नाउ गोइंग टू वेयर इज व्यू ऑप्शन. दिस इज ओके. यहाँ पे देखिए जैसे फाइल था, मेन्यू था, होम था, आफ्टर दैट एडिट था. but edit is not appearing here. Now the view item is on 1 2 3 4 5 6 7th option, on 7th option. Okay, so now यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, प्रिंट व्यू, ओके, फुल स्क्रीन, पेज विड्थ, फ्री थ्रू एंड many more option. Okay, so going to see view. यहाँ पे देखिए आप व्यू मेन्यू में आ गया, नॉर्मल व्यू, फ्रीज एंड स्टेटस बार, फ्रीज, नॉर्मल, स्प्लिट. ओके, रिव्यू, डाटा, इंसर्ट. ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो. एंड नाउ गोइंग टू सेट द पेज व्यू, नॉर्मल व्यू. ओके, okay, so now okay, as this is for you. Okay,
नाउ आई सेट द व्यू ऑप्शन इन लाइक दैट कि यहाँ पर डिसअपेयर हो गया, ठीक है। सो आई थिंक अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसा यहाँ पे अभी स्क्रीन पे हुआ, आई एम नाउ आई एम गोइंग टू गोइंग फॉर आई वुड लाइक टू गो फॉर बैक ऑप्शन कि हमारा ये व्यू मेन्यू जैसे आया तो वो बैक हो जाए। ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट जस्ट स्टूडेंट, ओ माय गॉड ये व्हाट्स इट कि ये तो सेटिंग ही चेंज हो गई, हमारा मेन्यू आइटम चेंज हो गया, हम इसको रिवर्ट नहीं कर सकते। ओके, ऐसा ही होता है ना। Yes, sir. अब एक स्कैरी नेचर होता है कि अब डर लग गया, कैसे कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, मैंने ऐसा कर दिया। तो देयर इज सिंपल थिंग, अनडू, दैट इज अनडू। undo it's working or not, menu bar, okay, so not going to work, not going to work again. This is insert view, now going to user interface, that is tabbed compact। now अब देखिए यहाँ पे tabbed compact आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ जाएंगे and now you going will see और simple सा option, just close the tab, just close the application, क्लोज कर दिया। जैसे ही एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, एवरीथिंग विल नाउ बिकम इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू। नाउ दिस इज कैल्क, ओके, लिब्रे ऑफिस कैल्क फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोंट बी वरी फॉर दैट, जो भी सेटिंग थी वहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ हो गया। नाउ फिर से वहाँ पे जाएंगे, फाइल, ओके, व्यू टूल बार, यूज़र इंटरफेस, नाउ स्टैंडर्ड टूल बार। अब देखिए आपका स्टैंडर्ड टूल बार आ गया एज इट इज दैट ओके? Yes, sir. तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि इफ़ यू आर स्केयरिंग फॉर टू डू द थिंग्स, आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे चेक करूं, कैसे, तो बस इतना सा याद रखना आपको, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट विल बी दिस इज यूज़र इंटरफेस, कि कैसा इंटरफेस हमारा अपीयर होगा स्क्रीन पे, जो भी टूल बार्स हैं, स्टैंडर्ड टूल बार हैं, ये टूल बार्स हैं, वो कैसे अपीयर होंगे, या टैब कैसे अपीयर होंगे, इसके अपीयरेंस के बारे में था। नाउ गोइंग टू सी दैट टूल बार्स 3D सेटिंग अलाइंग, क्योंकि यहाँ पर जो भी टूल बार्स दिए हुए ना, स्टैंडर्ड टूल बार दिए हुए ना, कुछ स्पेसिफिक दिए हुए हैं, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, यू मे चेंज द appearing options here, appearing tools here, as that this is toolbar. If I'm going to check that 3D setting, then this toolbar will be appear here, okay, just you may see here 3D setting, okay. Now this toolbar is appearing, okay. Again view toolbar, that is aligning object, arrow, data stream, drawing object property, find, font work, font control, form design, form navigation, image, insert cell, media playback, standard, okay. I'm going to check the media playback, okay, media playback, then media playback, okay, where is this option, media playback, view, then formula bar, toolbars, form control, media playback, why it's not appearing? I think appear हुआ, okay. Toolbar, now image toolbar, I think media playback is here also, format as currency, okay. Where these options are going on, view toolbars, data stream, okay. I think this is resume streaming, stop resuming, so functions, okay, view, and यहाँ से आप और भी टूल बार्स को ऑन कर सकते हैं, लाइक एज इंसर्ट, टेल, टूल्स, TSP, फार्मूला बार, इज देयर फार्मूला बार इज अवेलेबल, so the formula bar is going to disappear because it's that was appeared here, so formula bar, okay. Now this is फार्मूला बार, यहाँ पे पहले नहीं था आपका, अभी जैसे मैंने चेक, पहले तो था, जैसे मैंने चेक किया तो वो अनचेक हो गया एंड फार्मूला बार डिसअपियर हो गया था, फिर फार्मूला बार यहाँ पर अपीयर हो गया, ओके। इस तरह से आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो टूल्स यहाँ पर रख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ओके।
So now going to see the next option, that is toolbar. This is customize. ओके, सो यहाँ पर आप टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टूल बार आपको चाहिए यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से हटा सकते हैं उसको, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। चलिए अब टूल बार से नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। व्यू आइटम में वी विल सी द फार्मूला बार गोइंग टू ओके। फार्मूला बार को रखना है तो ठीक है, स्टेटस बार को आपको रखना है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेटस बार आपका डिसेपेयर हो गया, इसको अगर हटाना है तो इसको क्लोज कर दीजिए आप। नाउ व्यू ऑप्शन, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज टूल बार। वी हैव कंप्लीटेड टूल बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार। नाउ व्यू हेडर्स। अब अगर आपको जैसे ये हेडिंग, यहाँ पे हेडर्स क्या क्या हैं, हेडर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे पहले से? यस सर। क्या है हेडर, क्या है यहाँ पे हेडर्स, क्या है यहाँ पे? क्या? इस सीट में हेडर्स क्या क्या हैं? आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पे हेड क्या क्या है आपको दिखाई दे रहा है? सर जो कॉलम में लिखे। यस सर। क्या किसी हेड का नाम बताइएगा। F9। ओके, दिस इज सेल वैल्यू। तो यहाँ पे हेड क्या हुआ, ए बी सी जो है वो हेड होगा। क्या हो गया यहाँ पे हेड? C। ओके, गुड। सो दिस इज हेड एंड one thing that is view. Now going to view headers. If I am going to uncheck it, तो यहाँ पर से आपका हेडर्स डिसअपियर हो जाएगा लाइक एस। तो यहाँ से क्या क्या डिसअपियर हुआ, ए बी सी डी डिसअपियर हो गया, 1 2 3 डिसअपियर हो गया। सो दिस वन वाज हेडर्स। ओके, नाउ दिस वन। ओके, सो आपको पता चल गया यहाँ पे हेडर्स क्या क्या है ना? यस सर। ओके, okay, so now you may see here that view headers. Now view and view grid lines. So now you may see that grid line is going to disappear. यहाँ पर जो भी grid lines थे, that is, अब आपको ये पता चल गया होगा grid lines किसको बोलते हैं? पता चल गया आपको grid lines किसको बोलते हैं? यस सर। यहाँ पे डिसअपियर हो गया। अब इसको अगर मैं चेक कर दूंगा, ये अनचेक हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पता ही नहीं चलता है, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रिड लाइन है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि चेक है या अनचेक्ड है, नहीं है ना? ठीक है, अब मैंने यस सर। अगर आपको कोई पूछा ग्रिड लाइन कैसे ऑन करते हैं, मान लो कि कभी आपको एक्सीडेंटली ये वाला किसी ने ऑन कर दिया, तो आपको ये लगेगा ना कि सारी लाइन ही गायब हो गई, अब कैसे काम करेंगे, नहीं? तो यू हैव टू डू व्हाट थिंग, व्यू ऑप्शन पे जाना है, व्यू ग्रिड लाइन, तो यहाँ पे आपका अपीयर हो जाएगा। ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स, डिस्प्ले ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड, हेल्प लाइन विद मूविंग। तो ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए यू में सेलेक्ट। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रिड पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रिड आपको दिख रहा है कुछ, ये डॉटेड लाइन दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। हर एक सेल में डॉटेड लाइन आ गया ना, दैट इज व्हाट, दैट इज ड्यू टू व्यू ग्रिप एंड हेल्प लाइंस। ठीक है, तो इसको हम अनचेक करते हैं। नाउ अनचेक करने के बाद व्यू ग्रिड लाइंस, दिस वन। तो ये सारी सेटिंग आपकी यहाँ से होती है। इज दैट ओके? नाउ वैल्यू हाईलाइटिंग, कंट्रोल प्लस F8, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। सो फार्मूला, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी पहले मैं एक बार वैल्यू हाईलाइटिंग, जैसे कोई वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस ऑप्शन इज देयर। अभी तो ये सीट ब्लैंक है इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। सो फार्मूला, अगर फार्मूला की ज़रूरत होती है तो आप कंट्रोल, नॉर्मली देखिए यहाँ पे इसके जस्ट राइट साइड में आपको शॉर्टकट कीज़ भी दिए हुए हैं। ठीक है, if you don't want to go with menu option, you just have to press the key from your keyboard and will get the function and will get the action. The action will be applicable on that option. ठीक है। अगर आपको बार बार मेन्यू आइटम पे नहीं जाना है तो आपको क्या करना है,
जस्ट क्लिक फ्रॉम योर कीबोर्ड, और कीबोर्ड से जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका ये एक्शन अप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अब यहाँ पे देखिए शो फॉर्मूला, कमेंट्स, स्प्लिट विंडो। अब अगर ये विंडो है आपका, अगर इसको स्प्लिट करना है, सो व्हाट कैन वी डू विद दिस ऑप्शन? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्प्लिट? टू ब्रेक समथिंग, राइट नाउ, एम आई राइट? स्प्लिट टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट, नहीं तो देखते हैं स्प्लिट विंडो पे क्लिक करते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट। यहाँ पे कुछ दिखा Yes, आपको? sir. The window is going to split in 4 parts, divided into in 4 parts. This one is first one, this one is second, third, fourth, right? So this is the option of Yes, sir. split. Yes, sir. Okay, now going to disable it. There is no need of that. And freeze rows and column. Freeze rows and column, what will be the what is the use of freeze column? What will be the use of that? So just I'm going to give you the example. Okay, like as sorry, by mistake it has freeze rows and column. Okay, I'm going to, okay, so now this is a serial number, and this is a name. Okay, and now this is roll number. ओके, सो नाउ यू मे सी दैट अगर यहाँ पे जैसे बच्चों का रोल नंबर ज़्यादा हो गए, प्लीज़ जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बच्चों के रोल नंबर अगर ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो ना, तो ये जैसे स्क्रॉल करते हैं ना, मान लो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो सीरियल नंबर, रोल नंबर गायब हो गया ना यहाँ से, है ना? Yes, sir. अगर सीट थोड़ी लेंदी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे ढूंढते रह हाँ, जाते सर। कि जैसे यहाँ पे देखा आपने सीरियल नंबर, रोल नंबर लिखा हुआ था ना, तो वो तो ऊपर चला गया जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब सीट लंबी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जब गायब हो Sir. जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देयर इज ऑप्शन टू फ्रीज दैट, नाउ आई एम गोइंग टू व्यू एंड फ्रीज रोज एंड कॉलम। सो दिस इज रो, आई एम गोइंग टू फ्री रो, okay, and this one will be freezed. Now you may see that now going to freeze that, okay, freeze first column, freeze first row, now going to freeze first row. Now you will see that, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये बिल्कुल फ्रीज हो गया, यहाँ से हिलेगा नहीं, बाकी जितना कुछ होना है वो हो जाए, ठीक है? ओके, Yes, sir. तो फ्रीज ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मेन्यू आइटम्स बहुत होते हैं, लाइक एज अब हम चले जाएगा, जैसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अगर स्क्रॉल कर दें तो ये सीरियल नंबर गायब हो जाता है ना? नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम चले गए तो जैसे ये सीरियल नंबर गायब हो जाते हैं। मान लो मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, और यहाँ से क्या हुआ, ये सीरियल नंबर, अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर तो वो गायब हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? Yes, sir. तो नाउ वी हैव द ऑप्शन टू फ्रीज इट। नाउ गोइंग टू व्यू एंड वेयर इज द फ्रीज सेल्स, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ओके, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। नाउ यू विल सी दैट इट डजेंट मैटर कि आप कौन से रो पे काम कर रहे हैं, कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं, इट विल नेवर बी डिसअपियर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So that is the freeze option for you, and now you may use it as per your need. Okay, so is it complete about freeze rows and column? Yes, sir. ठीक है, अब आपका अनफ्रीज हो गया ये पूरा का पूरा। हाँ, is that clear now? So is that useful for you or not? Yes, sir. Okay, now this is a sidebar. You are going to see that sidebar यहाँ पर था, but this is now going to disappear. If you would like to make it appear again, then this is the option, control plus F5, that this sidebar will be appear here. Okay, now this is styles, again going to इस साइड बार की कोई ज़रूरत है नहीं,
तो so I'm going to make it disappear. So now, and now again the next option is styles. Styles for the font style, as you can see, every icon is saying something. जो भी यहाँ पर आइकन्स है ना वो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को. लाइक एज जितना भी आप देख रहे हो, ये ग्रिड लाइन के लिए है, व्यू हाईलाइटिंग के लिए है, फॉर्मूला के लिए, स्प्लिट विंडो के लिए यहाँ पे आइकन दिया गया है कि दिस विंडो इज़ गोइंग टू स्प्लिट, दिस इज़ फ्रीज. यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा नहीं. साइड बार के लिए दिया था कि ये साइड बार का सिंबल है. स्टाइल्स के लिए अब आप ये देख के मुझे बताओ कि ये स्टाइल किस पे इफेक्ट होगा, ये स्टाइल किसके लिए एप्लीकेबल होगा. इस आइकन को देख के आप बताओ ये स्टाइल किसके लिए एप्लीकेबल होगा. सर ये जैसे फॉन्ट का चेंज करने के लिए होगा, फॉन्ट को कर्सिव में करने के लिए या बोल्ड में करने के लिए होगा. सो हु इज दिस, हु इज दिस. सर आई एम पायल. Okay, so are you agree with that? Are you agree with Payal? यस सर. Okay, so Payal, very good. This is applicable for the font. This is font styles. Now you may see that default, accent, heading, status. जिसका भी font style आपको चाहिए, the font style will be changed as per the selection. और इसके लिए आप F11 अगर प्रेस कर देते हैं, then font style will be applicable. Okay. Yes sir. Now the next option is of gallery. So this is gallery. Now you may see that there is option of different symbols in gallery. You may find out, जैसे हम लोग कोई बनाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, बट वी आर अनेबल टू फाइंड दैट सिम्बल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको एरो के आइटम्स दिए गए हैं, ये सभी चीज़ें सिंबल दी गई हैं. नाउ यू मे सी दैट थिंग्स, राइट. Is that okay? Yes, Now sir. you may Yes, see sir. also the different options appearing here, and select as per your need. There is bullets option. There is computer that will help you to make your presentation, and diagrams. There are several diagrams here. Environment. Okay, you may select as per your need. Finance के लिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है, and there are several many more, school and university. So you may find out the desired one. Okay, so this was the gallery option. Okay, now going to see the navigator. What is navigator? Is there anyone who can tell me about navigator? What is navigator? Now going to make it disappear, so gallery is off. Now this is also undock. Okay, gallery navigator. So tell me, is there anyone who can tell me about navigator? नेविगेटर के बारे में आप बता सकते हैं? Sorry, sir, I don't know. Is there anyone? When I will tell you about navigator, you will definitely say, yes sir, I know. Yes sir, I know. I have the information about that. Okay, so when we are going left, we are going right, we are going up, we are going down, as there are 4 keys in your keyboard. I'm going to make it appear your keyboard on screen keyboard. So that is on screen keyboard. Now okay, sorry. On screen keyboard, this is, now your keyboard will be appear here. Okay, now are you getting my screen? Yes, sir. This Yes, button, sir. this button is called navigator button. ठीक है, this button is called button for navigation, because this will navigate the cursor up, down, left, right. Okay, this is navigation. Yes, This is navigation. To direct someone or something, that is called navigate. नहीं, is that clear? Yes, sir. अब आपको Yes, पता sir. है नेविगेशन क्या होता है? yes sir. फ़ोन में कई बार सुनते होंगे नेविगेशन ऑन हो गया, जैसे आप लोग कहीं ट्रैवल करते हो
तो जैसे गाड़ी से जा रहे हो तो आप लोग नेविगेशन ऑन करते हो। हैव यू सीन द एवर सीन द गूगल मैप? यस यस जब गूगल मैप देखते हो तो वहाँ करते हो ना, नेविगेट स्टार्ट करते हो, तो फिर वो गूगल मैप आपका स्टार्ट करता है, गो राइट, गो लेफ्ट, गो हैड, नहीं? यस यस Yes, sir. दैट इज नेविगेशन सिस्टम, राइट? ओके, तो दिस इज नेविगेटर। देखते हैं यहाँ पे नेविगेटर क्या काम करता है। नाउ गोइंग टू स्विच, दिस इज गोइंग टू ऑफ, देयर इज नो नीड ऑफ दैट कीबोर्ड। एंड नाउ नेविगेटर, सो range from data, range link project, so we can navigate from these options। हमारे पास ये options हैं, we may navigate from this okay, drawing object। so now you can see that column E, अब यहाँ से हम navigate कर सकते हैं, ठीक है? नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कॉलम ए पे रो 1, कॉलम ए पे रो 5, नहीं रो 9, ऐसे ये नेविगेशन के लिए ना हमारा। फिर रेंज नेम, रेंज नेम क्या लेंगे यहाँ पर? अब रेंज कुछ भी यहाँ से अगर चेंज करना है, यू मे चेंज द डिजायर्ड वन फ्रॉम दिस ऑप्शन, नहीं? तो ये नेविगेट करना ही हुआ ना, ठीक है? इज दैट ओके? यस आप यहाँ Yes, से sir. बिना किसी कॉलम को टच किए यहाँ पर से आप नेविगेट कर सकते हैं, एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, वी मे चेंज एज पर आवर नीड, नहीं? ठीक है, सो दिस इज नेविगेटर। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट function list, that is the list of functions will be appear here, like as average, sum, minimum, maximum, if, and many more if you like. That is last use, all the action formula will be appear here, नहीं? डेटाबेस, डेट एंड टाइम, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर डेट एंड टाइम करते हैं तो डेट एंड टाइम किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये सारा आपका अपीयर हो जाएगा। इज दैट ओके? यस Yes, sir. ओके, सो अब नाउ द डेटा सोर्स, हु इज गोइंग टू ज्वाइन, इज आस्किंग फॉर ज्वाइन, ओके। सो नाउ यहाँ पर आप देखें डेटा सोर्स के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत जल्दी आ गए आप। This class is about to complete, okay, so if you have missed the class, तो आप जो हमारा ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, just see that there and get the information from that video। so data source जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है, अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई डेटा है पहले से, तो we have the option to select the data source, okay। कहाँ से हम डेटा को फेच करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, दैट इज़ द डेटा सोर्स, ओके। एंड दैट इज़ फुल स्क्रीन, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, दिस इज़ फॉर फुल स्क्रीन। सो यू विल सी दैट एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑफ। यहाँ पर जितने भी मेन्यू आइटम्स थे वो क्या हो गए, गायब हो गए, है ना? मेन्यू आइटम दिख रहा है आपको क्या? No, sir. सो अब आप लोगों के मन में चलेगा, अगर बाय द वे ये हो जाता है तो अब आप लोग क्या सोचोगे, ये क्या हो गया, मैंने तो ये कर दिया, अब तो ये गायब, नहीं? अब ये आएगा कैसे? तो फिर वहाँ पे सर ये गायब हो गया, सर कैसे आएगा, नहीं? ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. सो देयर इज अ सिंपल ऑप्शन इन योर कीबोर्ड व्हेन यू विल सी दैट, ओके, नथिंग टू डू, जस्ट प्रेस ए बटन, दैट इज ESC बटन, ESC फॉर स्कैप, ठीक है? आपके कीबोर्ड में सबसे पहला बटन लेफ्ट हैंड साइड में पूरे रो में सबसे पहला बटन होता है ESC, जस्ट प्रेस इट, ESC बटन, एंड it will it will work, okay। and if not going to work, this is okay। so जैसे स्किप आपने प्रेस किया तो ये क्या हो गया, ऐसा आ गया, है ना? Yes, sir. सो डरने की ज़रूरत नहीं है, जूम ऑप्शन के लिए आपके पास है इंटायर पेज, पेज विड्थ 50%, 75% एज पर यू नीड, यू मे जूम द पेज, ओके। जैसे मैं अगर 50% कर दूं तो ये ऐसा अपीयर होगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्यू ऑप्शंस इनसाइड द LibreOffice कैलकुलेशन शीट। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क हियर। अगर ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया, I will repeat that. Is everything is clear? Yes, sir. यस सर Would you like to ask anything?
अभी तक में कोई क्वेरी है आपकी? Yes, sir. अभी तक में आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? No, sir. ओके, No, सो sir. नाउ गोइंग टू सी एज पर आवर सिलेबस। यहाँ पे हमें सिर्फ जानना था कि इंसर्ट में हमें बस इतना सा कर सकते हैं, बट इंसर्ट में इतना कर सकते हैं, व्यू आइटम में इतना कर सकते हैं, बट वी गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। एंड नाउ going to see that insert, format, style, sheet, data, tools, and window help this option. Now the toolbar, what is toolbar, what is standard toolbar, formatting toolbar, formula bar. Okay, so as we have I discussed about that thing, toolbar. You have seen that toolbar? Have you seen that toolbar? यहाँ पे जब गए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने टूल बार देखा था ना, ये सारी चीज़ें देखी थी ना हम लोगों ने। Yes, sir. सो इज देयर एनी नीड टू डिस्कस अबाउट अगेन? इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने सब कुछ वहाँ पर जो भी था उसके बारे में जानकारी ले ली। वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट दैट, व्हाट इज़ अ फंक्शन विजार्ड, व्हाट इज़ सम, हाउ इट विल डिसअपियर फंक्शन, इनपुट लाइन, वर्कशीट। नाउ वर्कशीट के बारे में जानकारी ले ली कि ये सेल कैसे वर्क कर रहा है, एक्टिव सेल कौन सा होता है, कॉलम रो क्या होते हैं, ये सभी। डू यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ कॉलम, व्हाट इज़ एक्टिव सेल, व्हाट इज़ एक्टिव सेल एड्रेस? डू यू नो? Yes, sir. I know. Okay, so that's okay. And now we will let's practice one, that is write the cell address of the following, first row and first column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। Sir, can you repeat? यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई एम आस्किंग फॉर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्या लिखेंगे? राइट द सेल A1. एड्रेस, राइट द सेल एड्रेस। Yes, sir. A1. एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। देन फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो क्या लिखाएगा? मान लो लास्ट रो हमारा क्या है, 10 है, ठीक है, तो क्या लिखाएगा? A. A10. गुड, दैट्स गुड। फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, पहला रो है और लास्ट कॉलम है। मान लो कि लास्ट कॉलम हमारा जेड है, लास्ट कॉलम हमारा जेड है, तो क्या लिखाएगा? ZA. Z. फिर से बोलना, फर्स्ट रो What लास्ट Z? कॉलम, लास्ट कॉलम जेड है, Yes, sir. क्या Sir, लिखाएगा? Z1. Z1, दैट्स गुड, Z1. दैट्स गुड। Z1. अब लास्ट कॉलम फर्स्ट रो, लास्ट कॉलम हमारा 10 है और रो हमारा, अब आप बताएं लास्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या लिखाएगा? A10. लास्ट कॉलम फर्स्ट रो A10, गुड, दैट्स गुड। Yes, sir. सेवंथ कॉलम एंड 10th रो, सेवंथ कॉलम एंड 10th रो, सेवंथ कॉलम का क्या हो जाएगा? ABCDEFG, G will be the seventh column and 10th row, तो क्या लिखाएगा? G10. That is G, the G and 10. Okay, that's good, very good. And now the 10th column and 9th row, 10th column, G हमारा 7 था, H हो गया 8, I हो गया 9 and J हो गया 10। Sir, I10. J हो गया बेटा, J 10 हो गया ना, 10th column is J and 9th row, then column is J and row is 9, तो क्या लिखाएगा? J9. J9. Exactly, very good. Then the cell address LK89 is situated in the row number and column number. तो इसमें रो नंबर क्या होगा बेटा, बताना जरा। इसमें LK89 में रो नंबर क्या होगा और कॉलम नंबर क्या होगा? फॉर योर हेल्प आई एम गोइंग टू, सबसे पहले व्यू में हम यहाँ पे जाते हैं, जूम ऑप्शन में थोड़ा सा इसको 100% करते हैं। नाउ यू विल सी दैट LK89, राइट ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. So
LK89. Okay, now going to LK89. So now you may see row number is, what is row number and what is column number. बताइए यहाँ पे रो क्या है, कॉलम क्या है. से जल्दी बच्चे, इतना बोल दिया, अब इतना से बताने में क्या दिक्कत है. LK89 में रो क्या है, कॉलम क्या है. अरे इतना लेट क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है. LK89 हाँ, तो रो क्या है इसमें और कॉलम क्या है. रो हमारी KL। फिर यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको LK89. सर LK हमारी रो होगी और 89 हमारा रो होगा कॉलम। कॉलम। फिर से सोचो, फिर से सोचो. LK89 रो क्या है, कॉलम क्या है. आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो कॉलम कहाँ है, रो कहाँ है. क्या हो गया, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको. LK हमारा कॉलम है ना बेटा, यहाँ देखो ये तो कॉलम है ना हमारा. और रो क्या हो गया, रो क्या हो गया. K। तो फिर क्लियर है ना, दैट इज LK हमारा कॉलम हो गया और 89 क्या हो गया, रो हो गया. नहीं, यस सर। तो दिस इज ओके. तो active cell in worksheet, to enter data in the cell it should be selected first. Active cell in a worksheet can be moved and selected by the key or combination of key. So देखिए आपने प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिया, 2 मिनट में हमारा टेस्ट भी हो गया. ठीक है, अब की कॉम्बिनेशन है, की कॉम्बिनेशन से क्या क्या कर सकते हैं हम. कॉलम रेंज क्या होता है, कॉलम रेंज क्या होता है इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, पहले ही देख चुके हो. कॉलम क्या होता है, रो रेंज क्या होता है, एंड हाउ इट विल वर्क. सो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा हम. अभी एक छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे. जो अभी कोई क्लास है आपकी. यस सर मैथ की। ओके ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग. ओके, so that's all about today's session, and thank you for the class. Now we will meet again next class. Okay. यस सर।